Hello, I'm Shayantika Das. So today we will be discussing a revision class about plant kingdom. So it will be a very short class, and in that time we will be trying to cover all the important points of plant kingdom. So let's go through the basics right now. So whenever evolution has happened, in case of any living organism, be it a plant, be it an animal, it has always occurred from water towards land. So if it's a plant kingdom, all the phyla that comes under the plant kingdom sequentially from the simplest to the most complex, that is angiosperm, are algae, then comes bryophyte, then comes pteridophyte, then comes gymnosperm, and ultimately there is angiosperm. So algae being the simplest and angiosperm being the most advanced or the most complex. Algae is also known as thallophyte. We are just revising the class 10 basics. So algae is the thallophyte, that is, it is an undifferentiated mass that where in which root, stem, leaves are absent. Then comes bryophyte, which is also called amphibian of plant kingdom, as it resides on land but it depends on water for sexual reproduction. Then comes pteridophyte. Phyte means plant. Whenever you hear this term phyte, it means plant, and pterido means it contains xylem and phloem. And then comes gymnosperm. Gymnosperm means the plant which bears naked seed. There is no covering outside the seed. And lastly, there is angiosperm, the only flowering plant. So every plant in its life cycle contains two phases. One is gametophyte and the other one is sporophyte. Sporophyte. From the name itself, you can see that gametophyte produces gametes, that are the male gamete and the female gamete, which fuses to form the sporophyte. And again, sporophyte produces spores. So what is the life cycle? I have written it here. So every plant, be it an algae or an angiosperm, it will undergo two phases in its life cycle. The first phase is the first, the second phase, it will depend on the type of plant. Let's consider the first phase of the plant is gametophyte, right? Then it will produce gametes. Gametes will be obviously of two types, the male gamete and the female gamete. The male and the female gamete will fuse, that is called fertilization. We all know that it will produce a zygote. That zygote will directly undergo mitosis to produce a sporophyte, or it will undergo like indirectly produce a sporophyte. Zygote always produces a sporophyte, and sporophyte produces spore. Spores undergo mitosis to give you a gametophyte. So this life cycle continues in case of every plant. And one thing you should also remember, that two things, that gametophyte, remember these two terms, Haga and Despo. Why Haga? Because gametophyte is always haploid. Gametophyte is always haploid. But what is Despo? Sporophyte is always diploid. Sporophyte is always diploid. So you can clearly see that whenever a gametophyte produces gamete, it undergoes mitosis, right? While a sporophyte undergoes meiosis to give you haploid spores. Spores are always haploid. So this is the life cycle of every plant. I will repeat this. Gametophyte undergoes mitosis, give you gametes. Male, female gamete fuses to form a sporophyte. Sporophyte undergoes meiosis, gives you spores. Spores undergoes mitosis to give you gametophyte. This is the life cycle. Now, depending on the type of plant, in some plants the gametophyte will be dominant, and in some plants the sporophyte will be dominant. So as we are advancing from algae towards the angiosperm, we can see the dominance of sporophyte is decreasing, while the reverse is happening for sporophyte. Uh, in case as we're advancing from algae to angiosperm, the dominance of sporophyte is increasing. What I am trying to say is that in case of algae, gametophyte is dominant and sporophyte is very much reduced. But in case of angiosperm, sporophyte is very dominant. The plant which you see near us are all sporophyte in their sporophyte forms. Sporophyte is dominant, but gametophyte is reduced, very much reduced. We will discuss it at the end.
So let's proceed now. So first we need to discuss revise all the examples. Like algae, it has got three types: green algae, brown algae, red algae. um, Green algae, you can remember this mnemonic: क्लैमाइडिया वाला उल्लू स्पैरो का अचार खाता है. क्लैमाइडिया से क्लैमाइडोमोनस, वाला का वी से वॉलवॉक्स, उल्लू का उल से यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनस क्लैमाइडिया क्लैमाइडिया से क्लैमाइडोमोनस, स्पैरो से स्पाइडोगाइडा आ जाएगा. अचार का चार से कारा कर लो, और ये जब भी सी आए तो उससे क्लोरेला क्लैडोफोरा भी कर लो, और यूजोडिना अलग से ऐड कर लो. तो ये बन गया तुम्हारा ग्रीन एल्गी का एग्जांपल्स. ब्राउन एल्गी पे आ जाओ. ये याद कर लो: एक दीदी लाई साग फोकट में, एक दीदी लाई साग फोकट में. एक से कर लो एक्टोकार्पस, दीदी से डिक्टायोटा, लाई से लैमिनरिया, साग से सरगाजम, फोकट से एफ से कर लो फ्यूकस, के से कर लो केल्प. ऐसे रेड एल्गी कर लो पीपीजीजी से, पी स्क्वायर जी स्क्वायर कुछ भी कर लो पर कर लो. पी से कर लो पॉलीसाइफोनिया, पोर्फायरा, और जी जी से गैलाइडियम ग्रासिलरिया. ब्रायोफाइट में आ जाओ, लिवरवर्ट और मॉस आएगा. लिवरवर्ट से करो, लिवर मर जाएगा रिस्क मत लेना, लिवर मर जाएगा रिस्क मत लेना, ये याद कर लो. लिवर से लिवरवर्ट आ जाएगा, मर्च से मर्चेंटिया, और रिस्क से रिक्सिया कर लो. मॉस पे आ जाओ. मॉस से एक याद कर लो, एक इंसान बना लो ऐसे, हाँ, जो कि बहुत फनी है और जिसके आसपास ऐसे हेड में बहुत सारे बाल है. तो इसका नाम दे दो सिंघम पटेल. सिंघम पटेल, तो ये बहुत फनी है. तो मौसी ने कहा सिंघम पटेल इज वेरी फनी. मौसी से मॉस कर लो. सिंघम से स्पेगनम याद कर लो. हाँ, पटेल से पॉलीट्राइकम. पॉलीट्राइकम मैंने क्यों कहा कि इसके सर पे देखो बहुत सारे बाल है, तो ट्राइकम मतलब हेयर, पॉली मतलब मल्टीपल, और फनी से फ्यूनरिया याद करो. ये ट्रिक्स है, आसानी होगी याद करने में. अच्छा, टेरिडोफाइट का एग्जांपल याद करना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है. तो 4 लाइन की स्टोरी है. 4 लाइन से टेरिडोफाइट्स के जो 4 क्लासेस है वो याद हो जाएगा. सो पहले लाइन जो स्टोरी का है वो ऐसा जाता है कि आदि वेंट टू टेरेस ऑफ ऑफिस एंड ड्रैंक वाटर एज जॉल इज अ सेवियर. जॉल का मतलब पानी है बांग्ला में. सो ये है तुम्हारा टेरोप्सिरा जो क्लास आता है टेरिडोफाइट्स के अंदर, उसका एग्जाम्पल से. सो आदि से आ गया एडियंटम. टेरिडोफाइट्स का जो टेरेस है उससे, टेरेस जो है उससे टेरिस, उसका भाई कर लो ड्रायो टेरिस. ऑफिस से ऑफियोग्लॉसम याद कर लो. जॉल से एजोला, सेवियर से सेल्विनिया. सेकंड लाइन क्या है? लाइक्स, वो आदि एक लड़की को पसंद करता है, उसका नाम है जेनेलिया. सो बट देयर इज अ प्रॉब्लम, जेनेलिया डोंट कंसिडर आदि ऑफ अ स्टैंडर्ड. इससे याद कर लो, लाइक से करो लाइकोप्सिडा जो क्लास आता है टेरिडोफाइट के अंदर, और लाइकोप्सिडा से कर लो लाइकोपोडियम, जेनेलिया से कर लो सिलाजिनेला. अब ये जो आदि का प्रॉब्लम हो गया कि वो एक लड़की को पसंद करता है लेकिन वो लड़की उसको पसंद नहीं करता, इसलिए प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आदि ने उसके दोस्त को कॉल किया जिसका नाम है सिला. आदिश फ्रेंड ही कॉल्ड सिला. सिला से याद कर लो सिलोप्सिडा जो क्लास है, इसका एक ही एग्जाम्पल होगा सिलोटम. और फोर्थ लाइन पे आओ कि सिला ने उसको क्या एडवाइस दिया. शी एडवाइज्ड हिम टू गो टू स्पेन सो दैट ही कुड बिकम इक्वल टू हिज लव. और स्पेन से कर लो स्पेनोप्सिडा, और इक्विसिटम, इक्वल से कर लो इक्विसिटम. तो ये एग्जाम्पल्स कुछ हो गए. और लास्ट जिम्नोस्पर्म, ये ऐसे भी याद कर सकते हो कि जेम स्टूडेंट्स प्लीज कम फॉर क्लास. जेम से गिंको लिविंग फॉसिल, सिक्विया रेडवुड ट्री, पाइनस साइकस सिट्रस, ऐसे भी हो जाएगा. अच्छा, अब थोड़े थोड़े ही जो हम इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देख लेंगे. पहले हम आएंगे एल्गी. एल्गी तो हमने पहले ही बोल दिया था कि एल्गी में क्या होगा. एल्गी का जो डोमिनेंट फेज है वो है गैमेटोफाइट. यहाँ पे गैमेटोफाइट का दबदबा चलता है, और स्पोरोफाइट बहुत ही रिड्यूस्ड है. स्पोरोफाइट इज वेरी मच रिड्यूस्ड. यहाँ पे स्पोरोफाइट का इतना ही बुरी हालत है कि वो सिर्फ जाइगोट बन के ही अपना काम चला रहा है. जाइगोट ही यहाँ पे स्पोरोफाइट. इतना इतना बस याद करो तो काफी है. टाइप्स ऑफ फ्यूजन से क्वेश्चन आता है नीट में, इसलिए ये भी याद करना जरूरी है. फ्यूजन मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर रहा है उसका फ्यूजन का टाइप कैसा है. एक होता है, हो सकता है आइसोगैमस, मतलब मेल फीमेल दोनों ही बराबर शेप में साइज में बराबर है. जैसे कि एक उसमें उसका भी दो टाइप होता है. एक होता है फ्लैजेलेटेड, एक होता है नॉन फ्लैजेलेटेड. मतलब गैमेट के ऊपर अगर फ्लैजेला है, अगर वो मूव कर रहा है तो फ्लैजेलेटेड. गैमेट के ऊपर फ्लैजेला नहीं है, मूव नहीं कर रहा, तो नॉन फ्लैजेलेटेड. अब जो मूव कर रहा है उसको ऐसे इमेजिन करो कि बहुत बड़ा सा एक कोई बर्ड है जैसे कि उल्लू. उससे क्या याद आ जाएगा? यूलोथ्रिक्स. और जो ऐसे मूव नहीं कर पा रहा है उसको छोटे से कोई बर्ड का एग्जांपल ले लो, जैसे स्पैरो.
स्पैरो मूव कर सकता है, लेकिन उसका ऐसे विजुअलाइज करो, ऐसे मान लो, तो स्पाइरोगैलम वहां से आ गया। एनाइसोगैमस मतलब क्या है, गैमेट तो है लेकिन गैमेट का साइज डिफरेंट है, मतलब एक बड़ा सा गैमेट, ये छोटा सा गैमेट, मान दो मेल फीमेल गैमेट जो है वो उनका साइज अलग है। उसका एग्जांपल कर लो यूडोरिना। देखो एनाइसोगैमस ए एन आई से स्टार्ट होता है और यूडोरिना ए एन आई से एंड होता है, तो यूडोरिना बन गया। ऐसे ट्रिक है कोई एग्जांपल का, ऐसा तो कुछ लॉजिक नहीं है इसका, पर ये ट्रिक ही है। और एक है ऊगैमस। ऊगैमस मतलब जो बड़ा है ना, बड़ा जो गैमेट है वो हमेशा फीमेल रहेगा, और जो छोटा गैमेट है वो हमेशा मेल रहेगा, ये है ऊगैमस। तो बोल सकते हो कि ऊगैमी इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमी। ऊगैमी का एग्जांपल याद करो, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। देखो ऊ का उच्चारण ऐसे वॉल्वॉक्स फ्यूकस से आ रहा है, तो ऐसे कर लो याद। हाँ, तो लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी ये देख लो एक बार। सपोज करो कि ये गैमेटोफाइट, दोनों गैमेटोफाइट है, एक फीमेल गैमेटोफाइट है, एक मेल गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा हमने डिस्कस कर लिया है, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल फीमेल माइटोसिस से, दोनों फ्यूज कर गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट। जाइगोट कैसा है, 2n। यहाँ पे स्पोरोफाइट का इतना ही बुरी हालत है कि स्पोरोफाइट इज वेरी मच रिड्यूस्ड टू अ जाइगोट। जाइगोट इज यूनिसेल्युलर, सो स्पोरोफाइट सिर्फ एक सिंगल सेल है। ये स्पोरोफाइट अब क्या करेगा, क्योंकि स्पोरोफाइट को स्पोर बनाना है, स्पोरोफाइट का प्लॉइडी क्या है, 2n डिप्लॉयड। और स्पोर्स का प्लॉइडी क्या होता है, हमेशा n। तो 2n से n कैसे आएगा, मियोसिस करके आएगा। स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर बना दिया, ये स्पोर जर्मिनेट या फिर माइटोसिस करके तुमको दे देगा गैमेटोफाइट, और ऐसे ही लाइफ साइकिल चलता रहेगा। यहाँ पे देखो जाइगोट जो था, जाइगोट ने खुद ही मियोसिस कर लिया, करके स्पोर बना दिया। तो जाइगोट अंडरगो मियोसिस, इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, एंड दिस इज वेरी मच यूनिक इन केस ऑफ एल्गी। सिर्फ एल्गी में ही तुम ऐसे देखोगे कि जाइगोट खुद ही मियोसिस कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि भाई ये लैमिनेरिया, सर्गाज्म, पोर्फिर, ये सब फूड के तरीके से इस्तेमाल होगा। फिर हाइड्रोकोलॉइड रहता है, वो क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो कि सेल वॉल में रहता है एल्गी का। एल्गिन रहता है ब्राउन एल्गी में, कैलागिन रहता है रेड एल्गी में। और जो दो रेड एल्गी है तुम्हारा, गैलाइडियम ग्रेसिलरिया, वो अगर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम आइसक्रीम जेली माइक्रोब्स में मतलब वो फॉर्म करने में हेल्प करता है। क्लोरेला को लेके स्पेस ट्रेवलर्स जाते हैं, ये डायग्राम भी देख के जाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 टेबल लगा दिया तुम्हारा ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का। वो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाल दिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये पढ़ लेना, कैसे फूड स्टोर करता है। ग्रीन एल्गी स्टार्च ऑयल के फॉर्म में, ब्राउन एल्गी मैनिटोल लैमिनेरियन स्टार्च, रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि ये आया भी हुआ है नीट में एक बार कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू डैश एंड डैश, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा देख लो, ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोराइड इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गी में कुछ होता नहीं है, ब्राउन एल्गी में एल्गिन मिलेगा तुमको, और रेड एल्गी में कैरागिन मिलेगा। हाँ, और यही है, फ्लैजेला वैजेला सब है, ये एक बार देख सकते हो यहाँ पे। पाइरिनॉइड्स मिलता है सिर्फ तुम्हारा ग्रीन एल्गी में, ये देख के जाना। अच्छा, फिर हम आते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या हुआ, यहाँ पे तो दो होता है ब्रायोफाइट का, एक है तुम्हारा लिवरवॉर्ट और दूसरा है मॉस। ब्रायोफाइट को क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मैंने पहले ही बोला, वो रहेगा तो लैंड में, लेकिन डिपेंड करेगा वाटर के ऊपर, डिपेंड करेगा फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो जो है इसका ब्रायोफाइट का, लिवरवॉर्ट मॉस। अब देखो हम एल्गी से जा रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। हाँ, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे भी लिवरवॉर्ट में क्या होता है, गैमेटोफाइट अभी भी, गैमेटोफाइट अभी भी थोड़ा ज्यादा ही है, थोड़ा ज्यादा ही डोमिनेंस है इसका। स्पोरोफाइट का अभी भी कम है, मतलब थोड़ा सा कम ही है, मान लो। मॉस में क्या होगा, मॉस में गैमेटोफाइट का थोड़ा कम ही हो जाएगा, गैमेटोफाइट का थोड़ा कम दबदबा हो जाएगा। और स्पोरोफाइट का क्या है, थोड़ा सा मतलब बढ़ जाएगा। यहाँ से आते आते देखो, मॉस में आते आते हमने क्या देखा कि अभी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का इक्वल डोमिनेंस हो चुका है। अच्छा, एक बार लाइफ साइकिल देख लो प्रायोफाइट का, कि तुम्हारा जो गैमेटोफाइट है वो गैमेट प्रोड्यूस किया, गैमेट फ्यूज करके तुमको जाइगोट दे दिया। अब जाइगोट ना डायरेक्टली तुमको मतलब जाइगोट ही स्पोरोफाइट नहीं है, यहाँ पे जाइगोट माइटोसिस करेगा। जाइगोट माइटोसिस करके तुमको क्या देखा देगा, देखो कि ये जो गैमेटोफाइट है, ये वाला क्या है, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट के ऊपर ये बैठ गया तुम्हारा स्पोरोफाइट।
हाँ, ये है तुम्हारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, तीन हिस्से, ऊपर वाला है कैप्सूल, उसके बाद सीटा, उसके बाद फूट। हाँ, ये तीन मिला के तुम्हारा स्पोरोफाइट है। अब ये वाला जो चीज है, इसका जो कैप्सूल है, हेड है, यहाँ पे होगा तुम्हारा मियोसिस। मियोसिस करके तुमको स्पोर मिलेगा, वो स्पोर माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनाएगा, ऐसे लाइफ साइकिल चलेगा। ब्रायोफाइट में क्या है, इनको क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं है ये सिलेबस में, पहले था, पर जान लो, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का दबदबा थोड़ा सा इक्वल ही है। यहाँ पे स्पोरोफाइट फ्री लिविंग तो नहीं है, अटैच्ड है टूवर्ड्स द मतलब गैमेटोफाइट के साथ। मतलब तुम देख लो, ऐसा ऐसा है हालत। ये अगर गैमेटोफाइट है, ये अगर गैमेटोफाइट है, तो उसके ऊपर ऐसा एक स्पोरोफाइट उग गया, इसके ऊपर ऐसे स्पोरोफाइट उग गया। तो ये देखो, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग तो है ही नहीं, स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा है ना गैमेटोफाइट के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसके न्यूट्रिशन के लिए। तो इसीलिए स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर ब्रायोफाइट में। ठीक है, तो ऐसे देखो होता है, ये तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट, उसके ऊपर तुम्हारा ये मिल गया मेल जो सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडियम, वो प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा बाई फ्लैजेलेट मेल गैमेट, दो फ्लैजेलेट रहता है ना इसके ऊपर, इसलिए। और ये तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर तुम्हारा आर्किगोनियम है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और यहाँ पे तुम्हारा एग है। तो ये जब पानी में जाएगा तो ये फीमेल जो मेल जो गैमेट से ये तैर कर, वाटर से तैर कर ऐसे तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट पे ऊपर आके पड़ेगा। फिर तुम्हारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, होके जाइगोट बना देगा। अच्छा, एक चीज याद करके जाओ यहाँ से जो कि इम्पोर्टेंट है, कि स्पोर डिस्पर्स कैसे होगा। सपोज करो ये तुम्हारा गैमेटोफाइट है, और उसके ऊपर ये तुम्हारा है स्पोरोफाइट। हाँ, ये तुम्हारा हो गया कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर तुम मियोसिस होगा, बिकॉज ये पूरा स्पोरोफाइट कैसे है, डिप्लॉयड। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होके तुमको स्पोर्स देंगे, जो स्पोर हो गए वो हैप्लॉइड हो गए। हाँ, अब ये स्पोर डिस्पर्स कैसे होगा। स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है, मॉस में जो होता है वो तुम्हारा पेरिस्टोम रहता है, ये याद कर लेना। अच्छा, फिर आ गया लिवर वर्ट। तो लिवर वर्ट में भी कुछ वैसा ही है। लिवर वर्ट में भी देखो, वो तुम्हारा सपोज करो ये फीमेल गैमेटोफाइट है। हाँ, उसके ऊपर ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा आर्किगोनियम जो कि है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसके अंदर ये तुम्हारा है एग, और ये कर लो मेल गैमेटोफाइट, उसके ऊपर ये है तुम्हारा एंथेरिडियम। ये तुम्हारा एंथेरिडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, वो प्रोड्यूस कर रहा है बाइफ्लैजेलेट मेल गैमेट, जो कि ऐसे तैर तैर के पानी से तैर कर, वाटर मैंने लिख दिया यहाँ पे, वाटर, पानी से तैर कर ऐसे आर्किगोनियम पे आके गिरेगा, जहां से तुम्हारा देखो ये जाइगोट बन गया। किसके ऊपर बना जाइगोट, ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही बन गया जाइगोट। हाँ, अब देखो ये जाइगोट से माइटोसिस करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बना दिया। ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बैठा है। तो स्पोरोफाइट का तीन हिस्सा होता है, ये तुम्हारा है कैप्सूल, ये तुम्हारा है फुट, ये है सीटा। कैप्सूल के अंदर ही क्या होगा, तुम्हारा मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होके, क्योंकि देखो जो कैप्सूल है वो तो स्पोरोफाइट का ही पार्ट है। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड। तुमको बनाना है हैप्लॉइड स्पोर, तो मियोसिस करके ही बनाओगे ना। तो ये स्पोर बन गया, फिर ये स्पोर माइटोसिस करके फिर से गैमेटोफाइट बना देगा। ये तुम्हारा लाइफ साइकिल हो गया ब्रायोफाइट का। अच्छा, मॉस में फिर ये याद करके जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। कि मॉस का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा, प्रोटोनिमा से होगा। और लिवर वर्ट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमा कप से होगा, ये याद करके जाना। अच्छा, फिर हम आ गए टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट है वो, मतलब इसमें फर्स्ट टाइम के लिए जाइलम फ्लोएम आया हुआ है, इसलिए टेरिडो का मतलब ही है जाइलम वेसल्स। टेरिडोफाइट में आते 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 क्या हुआ कि स्पोरोफाइट क्या बना, दबदबा इसका ज्यादा है। मतलब टेरिडोफाइट में आके हमने क्या देखा कि स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट बन गया, लेकिन जो हमारा गैमेटोफाइट था उसका दबदबा थोड़ा सा कम हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, उतना भी रिड्यूस हुआ नहीं जितना तुम्हारा जिम्नो और एंजियो में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिड्यूस हो ही गया। ठीक है, ये हो गया, हमने देख लिया ये। अच्छा, ज्यादातर ही जो तुम्हारा जिम्नोस्पर्म होता है वो होमोस्पोरस होता है। अब होमोस्पोरस का मतलब क्या है, होमोस्पोरस का मतलब है कि तो जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम साइज के स्पोर्स है। ज्यादातर ही 90% ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर दोस काइंड ऑफ, लेकिन जो few of them are heterosporous टेरिडोफाइट, मतलब जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे वो सेम साइज के नहीं होंगे, कुछ ज्यादा, कुछ स्मॉल स्पोर होंगे, कुछ लार्ज स्पोर होंगे।
इक्वल साइज के नहीं है, इसलिए हिट्रोस्पोरस बोलेंगे। अब देखो सारे मतलब ज्यादा से ज्यादा ही टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस है। हिट्रोस्पोरस का एग्जांपल्स अगर मैं तुम्हें याद कराऊं तो 2 S मान लो, हाँ 2 S। क्या क्या S? एक है तुम्हारा सैल्विनिया, सैल्विनिया, एक है सेलाजिनेला, सेलाजिनेला। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना चाहो तो मार्सिलिया और एजोला याद कर लो, एजोला और मार्सिलिया, ये दोनों याद कर लो, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेलाजिनेरिया और सैल्विनिया। हाँ, ये दोनों ही है जो एक्सेप्शन है हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। क्या सा? देखो, सपोज करो ये सेलाजिनेला का मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया जो कि हिट्रोस्पोरस है, ठीक है। इसमें दो तरीके का स्पोरेंजिया बन जाएंगे। एक तुम्हारा होगा स्मॉल स्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोर बनाएगा, और एक होगा लार्ज स्पोरेंजिया जो कि मैक्रोस्पोर बनाएगा। मतलब क्या, स्मॉल जो तुम्हारा स्पोरोफाइट, स्मॉल जो स्पोरेंजिया है, वो स्मॉल स्पोरेंजिया क्या करेंगे, छोटा छोटा, मतलब सपोज करो कि इतना इतना छोटा छोटा तुम्हारा स्पोर बना दिया, ठीक है। इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ऑब्वियसली स्मॉल जो स्पोरेंजिया है वो थे डिप्लॉयड, हाँ। और ये जो माइक्रोस्पोर बन गए वो हैप्लॉइड ही है, लेकिन छोटा छोटा बन गया, साइज में छोटे हैं, ऑब्वियसली मियोसिस करके ही बने हुए हैं। और जो लार्ज स्पोरेंजिया, वो भी डिप्लॉयड ही है लेकिन साइज में बहुत बड़ा है, वो बनाएगा मियोसिस करके मैक्रोस्पोर, मतलब ऐसे बड़ा बड़ा स्पोर बना दिया, ऐसे बड़ा बड़ा। साइज कंपेयर करो, इसका साइज कंपेयर करो इसका साइज, इसलिए इसको बोल रहे हैं मैक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर जो है वो थोड़ा सा तुम्हारा माइटोसिस वगैरह करके वो क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। देखो, जो छोटे साइज का होगा वो मेल बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जो कि अगेन हैप्लॉइड होगा। और मैक्रोस्पोर जो था वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, हाँ ये। अब देखो, जो मेल गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है, वो मेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, ऑब्वियसली मेल गैमेट्स बनाएगा ऐसे। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो तुम्हारा डिपेंडेंट ऑन द स्पोरेंजियम है, वो ऑब्वियसली उस पे ऊपर आर्किगोनियम हो गए। तो जो मेल गैमेट है वो ऐसे वाटर से फ्लोट करके फीमेल गैमेटोफाइट पे आके गिरेगा। सपोज कर लो कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा एक स्पोरोफाइट है, ये प्लांट टेरिडोफाइट का प्लांट है सेलेजिनेला। स्पोरोफाइट इसका मेन डोमिनेंट बॉडी मैंने बोल ही दिया, स्पोरोफाइट। हाँ, तो इसके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तुम्हारा है ये फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके ऊपर तुम देखो ऐसे आर्किगोनिया बैठा हुआ है, इसके अंदर है एक्सेल। अब ये एक्सेल के ऊपर क्या क्या आके गिरेगा, तुम्हारा ऐसे बाइफ्लैजिलेट जो गैमेट है वो आके गिरेगा ऐसे, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर तुम्हारा जाइगोट बनेगा। अच्छा, इसको हम बोलते हैं जो जो टेरिडोफाइट हिट्रोस्पोरी शो कर रहा है, जैसे कि सेलाजिनेला, सैल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, वो सीड हैबिट की तरफ जा रहे हैं अभी। मतलब सीड हैबिट, सीड हो जाएगा, लेकिन सीड के बाहर जो एनक्लोजर होता है ना, इंटुगुमेंट वगैरह, वो नहीं आएगा। इसीलिए तो हम जिम्नोस्पर्म को जिम्नो बोलते हैं, क्योंकि नेकेड सीड। तो देखो ये क्या था, ये मेगास्पोरेंजियम था, ठीक है, लार्ज स्पोरेंजियम था, यहाँ से मेगास्पोर बना मियोसिस करके। हाँ, बाहर पे जो ये कवरिंग है ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अच्छा, तो ये मेगास्पोर के ऊपर मेल गैमेट आके गिरा, माइक्रोस्पोर, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से एम्ब्रायो बन गया, और ये है ऐसा। तो ऊपर वाला जो सीड, ऐसे सीड कोड बना, ये कहाँ पे होता है, ये एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है, ये जिम्नो में नहीं होता। तो जब भी सीड के ऊपर सीड कोड आ गया उसका मतलब ये एनजीओ है, हाँ, जिम्नो नहीं है। जिम्नो प्रिकर्सर टू सीड हैबिट दिखाता है, मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर जिम्नो है तो वो भी कैसा जिम्नो, हिट्रोस्पोरस जिम्नो, हिट्रोस्पोरस, मतलब सेलाजिनेला, सैल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया। वो क्या दिखाएगा, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। लेकिन सीड हैबिट कौन कौन दिखाएगा, वो एनजीओ ही दिखाएगा सिर्फ। अच्छा, फिर लास्ट में, सेकंड लास्ट में आए हैं हम जिम्नो। यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो स्पोरोफाइट ही काफी एडवांस हो गया है यहाँ पे, बहुत एडवांस हो गया है स्पोरोफाइट यहाँ पे। लेकिन गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है, गैमेटोफाइट रिड्यूस है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल्स पता ही है तुम्हें, जिंको, सिकोया, पाइनस, साइकस, सिट्रस। फिर आ जाता है हम, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि स्पोरोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट है। हाँ, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे स्पोरोफाइट के ऊपर। अच्छा, देखो ये डायग्राम अच्छे से देखो। सपोज करो कि ये तुम्हारा जो मैंने ड्राइंग किया है ये एक ओव्यूल है, हाँ, हम जिम्नो की बात कर रहे हैं। ये ओव्यूल है, या फिर मेगास्पोरेंजियम भी इसको बोलते हैं। तो ओव्यूल के अंदर का हिस्सा क्या, देखो न्यूसेलस है, फूड स्टोरिंग सेल्स।
डिप्लॉयड है। हाँ, और इसके अंदर, इसके बाहर का जो ये कवरिंग है, इसको इंटीगुमेंट बोल रहे हैं, वो भी डिप्लॉयड। न्यूक्लियस का एक सेल जो जो चोजन वन बन गया, उसको नाम देंगे एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि होगा डिप्लॉयड। वो डिप्लॉयड एमएमसी जो होगा वो मियोसिस करेगा, मियोसिस करके तुमको 4 मेगास्पोर ऐसे दे देगा। 4 मेगास्पोर में से 3 रैंडमली डिजेनरेट कर जाएंगे। ये देखो, ये 3 जो था वो डिजेनरेट कर गया। जो एक बच गया वो तुम्हारा एक फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो भी हैप्लॉइड ही है। हाँ, ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, देखो ये माइटोसिस अंडरगो करेगा। ये वाला जो था ना, ये वाला माइटोसिस अंडरगो कर गया, करके क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। मतलब ये वाला जो मेगास्पोर था वही तुमको ये देखो फीमेल गैमेटोफाइट दे दिया। अब देखो गैमेटोफाइट का मतलब ही क्या है, वो सेक्स ऑर्गन बियर करेगा। तो ये जो ऑरेंज वाला गैमेटोफाइट है, ये जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर क्या होगा, ये फ्लास्क शेप्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बनेगा। आर्किगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके अंदर ये वाला क्या है, ये एग सेल्स है। तो पोलन ग्रेन बाहर से आया, ऐसे पोलन ट्यूब से उसने मेल गैमेट को अंदर घुसा दिया, अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। ये देखो, ये येलो वाला क्या हो गया, जाइगोट। जाइगोट हमको पता है ये डिप्लॉयड है। और ये जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो है ना, एंडोस्पर्म मतलब वो खाना स्टोर करता है, ग्रोइंग जो जाइगोट होगा, सीड होगा उसके लिए। तो एंडोस्पर्म है वो कहाँ से बना, वो आया, ये देखो, ये जो हमारा था, ये जो फीमेल जो गैमेटोफाइट था, मतलब ये वाला जो हिस्सा था ना, फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड। ऑब्वियसली गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, हमने बोला ही है पहले। सो वो बन गया, देखो तुम्हारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फॉर्म फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट तो ऑब्वियसली है हैप्लॉइड, तो फिर उससे ही बना हमारा एंडोस्पर्म, तो वो भी होगा हैप्लॉइड। अब ये तो हमारा एल्गी से जिम्नो हमने देख लिया। एंजियोस्पर्म हम इस चैप्टर में नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको पता है वी स्टडी एंजियोस्पर्म इन क्लास 12, वो अलग ही चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें देखते हैं, तो इसमें हम नहीं देखेंगे। तो हम एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं, हमने क्या क्या देखा इस छोटे से क्लास में। हमने देखा कि जब भी इवोल्यूशन हुआ है, हमने वो लैंड, वाटर से लैंड की तरफ ही गया है। सो पहले आता है तुम्हारा एल्गी, फिर आएगा तुम्हारा ब्रायोफाइट, फिर आएगा तुम्हारा टेरिडोफाइट, फिर आ जाएगा तुम्हारा जिम्नोस्पर्म, फिर आ जाएगा तुम्हारा एंजियोस्पर्म, जो कि है फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, हमने एक और चीज देखा, हमने ये भी देखा कि हर एक प्लांट, बीट एंड एल्गी, बीट एंड एंजियोस्पर्म, वो दो, उसका प्लांट का वो तुम्हारा दो लाइफ साइकिल का 2 फेज आएगा। एक तुम्हारा आएगा गैमेटोफाइट, दूसरा आएगा स्पोरोफाइट। जब भी गैमेटोफाइट आया है, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट क्या, गैमेटोफाइट क्या करता है, गैमेटोफाइट तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट मेल फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन करके तुम्हारा क्या बनाएगा, जाइगोट, जो कि ये डिप्लॉइड, ये जाइगोट बन गया, ये डिप्लॉइड हो गया। अब जाइगोट क्या करेगा, थोड़ा बहुत माइटोसिस वगैरह करके तुम्हारा बन जाएगा, स्पोरोफाइट बना देगा। और स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट मियोसिस करता है, मियोसिस करके तुम्हारा हैप्लॉइड ऐसे स्पोर बना देता है। हाँ, ये सब स्पोर्स है, और स्पोर जब भी होगा, स्पोर हैप्लॉइड ही होगा। ये जो हैप्लॉइड स्पोर है, ये फिर भी जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देगा। तो ऐसे लाइफ साइकिल चलता रहता है। एल्गी में हमने क्या देखा, 3 तरीके का एल्गी होता है, ग्रीन, ब्राउन, रेड। इसका एग्जाम्पल्स भी हमने याद कर लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि गैमेटोफाइट का दबदबा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ, और स्पोरोफाइट इज रिड्यूस्ड। स्पोरोफाइट यहाँ पे स्पोरोफाइट का एग्जिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू यूनिसेल्युलर जाइगोट, तो बहुत ही रिड्यूस है यहाँ पे स्पोरोफाइट, ठीक है, ना के बराबर। ब्रायोफाइट में आ जाओ, यहाँ पे 2 तरीके होता है, एक तुम्हारा होता है लिवरवॉट, एक तुम्हारा होता है मॉस। यहाँ पे देखा हमने कि गैमेटोफाइट का डोमिनेंस अभी भी है, लेकिन स्पोरोफाइट का, गैमेटोफाइट का डोमिनेंस अभी भी है। हाँ, लेकिन स्पोरोफाइट का डोमिनेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। टेरिडोफाइट में आके हमने देखा कि खेल अब उल्टा हो गया। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम पहली बार आया, यहाँ पे हमने देखा कि खेल थोड़ा सा उल्टा उल्टा होना स्टार्ट किया, मतलब उल्टा होना स्टार्ट किया। और यहाँ पे हमने देखा कि 2 तरीके का होता है। एक तुम्हारा होता है तुम्हारा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, जो कि मैक्सिमम होमोस्पोरस ही है। हेटेरोस्पोरस के अंदर कौन कौन है, सेलाजिनेला और
सैल्विनिया। ये है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट जो कि दो तरीके का स्पोर प्रोड्यूस करेगा और ये क्या दिखाएगा, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ठीक है। अच्छा, टेरिडोफाइट में आते आते क्या देखा हमने कि तुम्हारा जो गैमेटोफाइट जो था वो रिड्यूस होना शुरू किया, लेकिन जो स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जिम्नो में आते आते हमने क्या देखा, जिम्नो में आते आते हमने देखा कि सीड तो है लेकिन सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं है, नेकेड सीड है। यहाँ पे कहानी घूम घूम चुका है। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट जो है वो बहुत रिड्यूस्ड है, लेकिन जो स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट वो डोमिनेंट बन गया है। एनजीओ में यही रिपीट होता है कि गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस हो जाएगा और स्पोरोफाइट और भी बढ़ जाएगा, मेन प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये छोटा सा ही हमारा एक रिविजन क्लास था प्लांट किंगडम का। होप यू लाइक्ड इट। अगर ये वीडियो तुम्हारा कोई भी काम में आए तो प्लीज़ लाइक बटन जो है वो क्लिक कर देना, और ऐसा ही तुमको अगर कोई रिविजन क्लास चाहिए तो कमेंट में तुम लिख सकते हो। थैंक यू।